سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روائی چینل میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ریاکشن وِد دعا بٹن کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بے اولاد جوڑے کا قصہ، نئے پالی کی وجہ سے تباہی ان کا مقدر ٹھہری۔ میں اپنے اخبار کے دفتر سے چھٹی کر کے رات کے 2 بجے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ موسم بڑا سہانا تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور سارے ماحول پر چاندنی بکھر کر ہر شے کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے میرے دل میں گدگدی پیدا کر رہے تھے۔ آس پاس کیا دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھا۔ ایسی میں مجھے اپنی بیوی مہوش شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ میں ابھی دوپہر ہی میں اس سے رخصت ہو کر دفتر آیا تھا، لیکن میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ اس کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ وہ بھی مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ ہم دونوں ابھی اولاد سے محروم تھے۔ اس کے باوجود ہم اللہ سے مایوس نہیں تھے۔ مہوش روزانہ نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اسے ایک چاند سا بیٹا دے۔ میں نماز تو نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب مہوش نماز پڑھتی تو میں اس سے کہہ دیتا کہ اللہ سے میری طرف سے بھی دعا کر دے، جس پر وہ کہتی کہ میں خود کیوں نہیں نماز پڑھتا۔ میں اپنی سستی اور کاہلی کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ آج دوپہر میں اس سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ آیا تھا کہ شاید دفتر میں دیر ہو جائے، کیونکہ آج میرے دفتر کے ساتھی صدیق میں چھٹی کرنی تھی اور میری توقع کے مطابق دیر ہو گئی تھی، جبکہ عام حالات میں رات 12 بجے سے پہلے چھٹی کر لیتا تھا۔ میں اپنے دھیان چلا جا رہا تھا، اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی مرد یا عورت وغیرہ کی گود میں ہوگا، لیکن آواز مجھے کچرا دان کے پاس سے آئی تو میں بے اختیار اس طرف دیکھا اور پھر وہاں کچرے کے ڈھیر کے قریب مجھے کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی۔ میں نے غور کیا تو وہ ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ پیر ہل رہے تھے۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا اور قریب پہنچ کر بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ بچہ بڑا معصوم تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کہانی کیا ہوگی، یہی کہ کسی ماں نے ناجائز حرکت کرنے کے بعد اس بچے کو جنا ہوگا اور پھر اپنی ممتا کو اپنی عزت کے باری قدموں تلے رونتے ہوئے وہ اس معصوم کو یہاں چھوڑ گئی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ وہ ننگا تھا۔ میں نے اس کے جسم پر سے مٹی وغیرہ کو صاف کیا اور اسے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ بچہ بڑا خوبصورت اور صحت مند تھا۔ میں نے اسے خود سے لپٹ لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر آنے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ نے مجھے اس طرح اولاد سے نواز دیا ہے، اب اس کی حفاظت اور پرورش کرنا میرا فرض تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مہوش بھی اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرے گی یا نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے یتیم خانے میں دینے کے لیے کہا تو میں اسے سمجھاؤں گا کہ جب تک ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی ہم اس معصوم کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ مہوش یہ بات مان لیتی، اور اگر وہ یہ بات مانتی تو پھر اس بچے کا مستقبل ہمارے گھر رہنا دشوار نہ ہوتا، کیونکہ جب تک ہمارا بچہ آتا مہوش کو اس سے ملنے والے بچے سے اتنی محبت ہو جاتی کہ وہ اسے یتیم خانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، وہ انگوٹھا چوس رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھوکا ہے۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار کو تیز کر دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ مہوش میرے انتظار میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے میری پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی سوالیہ نشان ابھر آئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی زبان کچھ کہتی، میں نے کہا، یہ بچہ مجھے کچرے دان پر سے ملا ہے، کسی ظالم اور کنواری ماں نے اسے وہاں پھینکا ہوگا۔ مہوش ایک جانب ہٹ گئی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا، پھر ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بہت پیارا بچہ ہے، مہوش نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن بھوکا ہے، میں نے کہا۔ ہاں لگتا تو ہے، مہوش بولی، پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میں اس کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں نے بچے کو تولیے میں لپیٹ دیا۔ کچھ دیر بعد مہوش ایک کپ میں کچھ دودھ لے آئی، ساتھ ہی وہ چمچ بھی لائی تھی۔ اس نے چمچ کی مدد سے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ بچہ مزے سے دودھ پیتا رہا۔
फिर वो कलकारियां भरने लगा और मैविश जो दूध इसके मुंह में देती वो इसे बाहर निकाल देता। बस करो मैविश, शायद इसका पेट भर गया है, मैंने कहा तो मैविश ने चम्मच कप में डालकर रख दिया। फिर बोली, अब हम बच्चे का क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं इसे यतीम खाने में छोड़ आता हूँ, मैंने मैविश को आजमाने के लिए कहा। यतीम खाने में वो सोचने लगी। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। क्या हम इसे अपने पास नहीं रख सकते? हमारे यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, महविश बोली। अच्छा ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। महविश ने इसे अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी ममता को कुछ तस्कीन मिल गई है। वो बच्चा हमारे पास ही रहने लगा। हमने इसका नाम हमजा रखा। महविश और मैं इसे पाने के बाद बहुत खुश थे। अगर तुम्हारा अपना बच्चा आ गया तो कहीं तुम्हारी ममता में कोई कमी तो वाकया नहीं हो जाएगी? एक रोज मैंने बातों बातों में महविश से मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, ये तो मेरा अपना ही बच्चा है, मैं इसे खुद से कैसे जुदा कर सकती हूँ? उसने हमजा को सीने से लगाते हुए जवाब दिया। मैंने सुकून का सांस लिया कि अब हमजा का मुस्तकबिल महफूज है, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह मुतमिन नहीं था, क्योंकि जब तक हमारा बच्चा न आ जाता और मैविश अपने कहने के मुताबिक हमजा को अपना ही बच्चा तस्वर ना करती, उस वक्त तक मैं पूरी तरह मुतमिन नहीं हो सकता था। मुझे अब भी शक था कि अपना बच्चा आ जाने के बाद हमजा के लिए मैविश की मोहब्बत में कमी आ जाएगी। एक रात में दफ्तर से रात 1 बजे घर आ रहा था। रास्ता और आसपास का इलाका हस्बे मामूल वीरान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं इस कचरेदान के करीब से गुजर रहा था जहां से मुझे हमजा मिला था। अचानक एक अनजानी आवाज ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। किसी ने मुझे पुकारा। मैंने कचरादान की तरफ देखा, वहां एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। जी फरमाइए, आपने मुझे पुकारा? मैंने पूछा। वो औरत चलती हुई मेरे करीब आ गई और बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तुम्हारा बच्चा कौन? मैंने इसकी बात पर गौर करते हुए पूछा। वैसे मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो हमजा के बारे में बात कर रही है, वही जिसे तुम उस रात उठाकर ले गए थे। उसने जवाब दिया। लेकिन तुम कौन हो? मैंने इसका जायजा लेते हुए पूछा। तफसीली जायजे से अंदाजा हुआ कि वो बेहद खूबसूरत और हसीन है। किसी भी मर्द को बहकाने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं इसकी माँ हूँ, उसने जवाब दिया। तो मैं बेहद गुस्से से इसकी तरफ देखने लगा और बोला, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें तुम्हारा बच्चा। तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिल सकता। तुम जैसी जालिम औरत के लिए यही सजा है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे का मुंह भी न दिखाया जाए। वो मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, तुम मुझे मेरा बच्चा लाकर दो। वो कदरे सख्त लहजे में बोली। माँ, मैंने तनसी अंदाज में कहा। ये ममता उस वक्त कहाँ जा सोई थी जब तुम उस बच्चे को यहाँ फेंक रही थी? मैं उस वक्त मजबूर थी, मुझे इज्जत का डर था। वो बोली, इज्जत का डर? मैं तनसी अंदाज में हंसा। किस इज्जत की बात कर रही हो? इसकी जिसे तुम अपनी जवानी के नशे में किसी भूखे भेड़िए के हवाले कर चुकी थी और जिसके नतीजे में हमजा जैसा खूबसूरत बच्चा वजूद में आया। मैंने लहजे को सख्त करते हुए कहा, सुनो मैडम, अब यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। ज्यादा इज्जत और ममता का ढोंग रचाया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। फिर वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है और तुम्हारे उस आशिक को भी थाने बुलाया जाएगा जिसने तुम्हारे इस खूबसूरत बदन से खेलने के बाद तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है। अगर वो कम वक्त तुम्हारा साथ देता तो तुम उस वक्त अकेली यहाँ ना होती। तुम समझने की कोशिश करो, ये मामला वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये इंसानों का मामला नहीं है। मेरा बच्चा वापस कर दो, इसमें तुम्हारी बुलाई है, वरना तुम्हारा बहुत भयानक अंजाम होगा। वो औरत बोली। मैं समझ गया कि अब वो मुझे खौफजदा करना चाहती है ताकि मैं उसका बच्चा उसके हवाले कर दूं, जबकि मेरा हमजा को वापस करने का कोई इरादा नहीं था और मैविश इससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि इससे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन उस औरत की जुबानी ये सुनकर मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे हमजा को इसके हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो उसका बेटा था और अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपने बेटे को पालना चाहती है तो फिर हमजा को इसके पास रहना चाहिए। लेकिन मुझे हमजा से इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर मैविश तो शायद इसके
के बगैर मर ही जाती। मुझे अपने सामने मौजूद औरत से भी हमदर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी बीवी से भी हमदर्दी थी। मैं इसे किसी किस्म का दुख नहीं देना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमजा हमारे पास बिल्कुल ठीक ठाक और महफूज है, और अगर वो औरत चाहे तो मैं इसे इससे मिलाता रहूंगा, लेकिन मैं हमजा को इसके हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह महविश को ना जाने क्या कुछ हो सकता था। वो हमजा की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने उस औरत को ये बात समझाई और बोली, तुम कल तक हमजा को मेरे हवाले कर दो उसी जगह, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये इंसानी मामला नहीं है, वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे खौफजदा करना चाहती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी इन गिदड़ बातों में आकर हमजा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा? ये कभी नहीं होगा। मैं तो तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता रहूंगा, लेकिन तुम अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करके इसे मुझसे हासिल करना चाहती हो। अब तो मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, सीधी तरह कल तुम बच्चे को यहाँ ले आओ, वरना हर किस्म के नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। बोलो, क्या कल दे रहे हो या नहीं? उसने खूनखार लहजे में कहा, नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। मैंने इससे मरऊब हुए बगैर जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ अपनी तबाही के लिए, उसने कहा और पलटकर चल पड़ी। मैं उसे उस वक्त तक जाते हुए देखता रहा जब तक वो दरख्तों के झुंड में गायब नहीं हो गई। फिर मैंने एक गहरा सांस लिया और घर की तरफ चल पड़ा। मेरा दिमाग उस औरत में उलझा हुआ था। मुझे यकीन था कि कल फिर वो मुझे यहाँ मिलेगी और मुझसे दरख्वास्त करेगी कि मैं हमजा को इसके हवाले कर दूं। उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसके डर में नहीं आया था, और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मेरी मिन्नतें करे। अगर महविश का मामला ना होता तो शायद मैं हमजा को इसके हवाले कर देता और इससे ये कहता कि वो हमजा से मुझे भी मिलने दिया करे, लेकिन महविश हमजा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए मैं चाहता था कि हमजा की माँ से कोई ऐसा मामला तय हो जाए कि वो महविश को भी सदमा ना पहुंचे और हमजा की माँ भी अपने बेटे से मिलती रहे। मैं मामले को मजीद काबिल अमल और आसान बनाना चाहता था, लेकिन हमजा की माँ तो बात ही खत्म करके चली गई थी। मुझे ये भी शक था कि कहीं वो महविश के पास ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने फैसला किया कि महविश को पहले से आगाह कर दूंगा कि आजकल कुछ जराइम पेश लोग लावारिस बच्चों को हासिल कर रहे हैं, ताकि बाद में इन बच्चों को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। इस तरह अगर मेरी गैर मौजूदगी में हमजा की माँ महविश से मिलने आती तो वो इसकी बातों का यकीन ना करती और हमजा को इसके हवाले करने से साफ इनकार कर देती। मैंने घर पहुंचकर महविश को अपने मंसूबे के मुताबिक कहानी सुना दी। वो कुछ परेशान हो गई और बोली, हमजा के बारे में तो बहुत लोगों को पता चल चुका है कि वो हमें कहां से मिला है, कहीं कोई इसका दावेदार भी पैदा ना हो जाए। नहीं, इसका मामला कुछ और है, मैंने तसल्ली में इस लहजे में कहा। हमजा के माँ बाप दावा नहीं कर सकते कि ये इनका बच्चा है, क्योंकि इस तरह तो वो खुद पुलिस केस में फंस जाएंगे। मैं हमजा को किसी हाल में किसी के हवाले नहीं करूंगी। महविश ने हमजा को सीने से लगा कर कहा, तुम बेफिक्र रहो, इसे कोई नहीं ले जा सकता। मैंने तो तुम्हें एहतियातन ये बताया है कि आजकल शहर में ऐसा गिरोह भी काम कर रहा है जो लावारिस बच्चों को किसी न किसी तरह हासिल कर रहा है। मैंने कहा, अगली रात हमजा की माँ मुझे कचरा दान के पास मिल गई। वो मेरे करीब आई तो मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अब क्या लेने आई हो? तुम तो कह रही थी कि मेरी तबाही शुरू होने वाली है। मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कहने आई हूँ कि मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। आज तुमसे मुलाकात इसलिए कर रही हूँ कि शायद तुमने कोई अक्लमंदाना फैसला किया हो, लेकिन लगता है कि तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो। इसने कहा, हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया है, मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मैंने जवाब दिया, बस तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, बल्कि तुम खुद हमजा को लेकर मेरे पास आओगे। उसने गुस्से लहजे में कहा। मैंने हल्का सा तंसिया कहका लगाया और बोला, चलो तो फिर ठीक है, उस वक्त का इंतजार करो जब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा।
आखिरी बार सोच लो, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं फिर तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि ये मामला इंसानी नहीं है, वो शैतान है जो तुम्हारे घर में रह रहा है। मैंने इसे यहाँ सही लटाया था, यहाँ से वो फना हो जाता, लेकिन तुम उसे ले गए। इसका खत्म होना बड़ा जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम इसे मार डालोगी? मैंने हैरत और गुस्से से इसकी तरफ देखा। हाँ, इसे मरना चाहिए, वरना दूसरों को मरना पड़ेगा। इसे ले आओ यहाँ, इसे ले आओ। वो बोली, रहने दो ये ड्रामेबाजी, तुम सीधी तरह इसे हासिल नहीं कर सकती, इसलिए ये कहानियां गढ़ रही हो। और मुझे महसूस होता है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं हमजा को किसी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पलटकर चली गई। मैं फिर इसे उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो दरख्तों के झुंड में गायब नहीं हो गई। फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक हफ्ता खैरियत से गुजर गया। फिर एक रोज मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने वजह जानना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहकर निकाल दिया गया कि मैं लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ। हालांकि मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था। मैंने अपने बॉस से इनकी बात का सबूत मांगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। मैं अपना हिसाब लेकर मुंह लटका के वापस घर आ गया। महविश को भी मेरी नौकरी चले जाने पर बेहद अफसोस था। मैंने दूसरी रोज ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं काम न मिला। जो कुछ पास अंदाज था वो एक माह के अंदर खत्म हो गया। फिर लोगों से उधार कर्ज का सिलसिला शुरू हो गया, जो ज्यादा अरसा न चल सका, और इस तरह नौबत फाकों पर आ गई। मैं फिर भी कोशिश करता रहा कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। अब तो अक्सर हमजा के दूध के पैसे भी नहीं होते थे और वो बेचारा भूखा रहता था। ये मैं और महविश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और खून के आंसू रोते रहते थे। फिर महविश बीमार हो गई। इसे मैं दुआ दिलाता रहा जो कि सरकारी अस्पताल से आती थी, लेकिन महविश की हालत रोज ब रोज खराब होती चली गई। मैंने एक दोस्त से कुछ रकम लेकर महविश का मुकम्मल चेकअप करवाया तो पता चला कि वो बिल्कुल फिट है। डॉक्टरों को इसकी बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहती थी कि कोई इसके जिस्म को छुरियों से काटता है। डॉक्टर परेशान थे कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। महविश चीखती चलाती थी। जब इस पर दौड़ा पड़ता तो वो यही चीखती कि इसे कोई काट रहा है। बिलाखिर एक रोज वो मर गई और मैं पागल सा हो गया। हमजा की वजह से मैं जिंदा था, वरना मुझे अब जिंदगी में कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। फिर मैं खुद भी बीमार रहने लगा। मैं सही तौर पर हमजा की परवरिश नहीं कर रहा था। एक रोज मुझे ख्याल आया कि मैं हमजा को यतीम खाने में दे दूं तो अच्छा है। ये ख्याल आते ही मुझे हमजा की माँ का ख्याल आया और मैंने सोचा कि हमजा को इसके हवाले कर दूं। अब मुझे इसकी बातें दुरुस्त महसूस होने लगी थी। मेरा सब कुछ तबाह हो गया था। इसके कहने के मुताबिक नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि मैं हमजा को इसके हवाले करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरह तो इसकी बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। मैंने फैसला किया कि मैं किसी हाल में भी हमजा को इसके हवाले नहीं करूंगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे यतीम खाने दे दूं। लेकिन मैं ये कैसे तस्लीम कर लेता कि हमजा एक मासूम बच्चा नहीं बल्कि शैतान है। मेरा दिल ये बात तस्लीम करने पर राजी नहीं था कि हमजा शैतान है, लेकिन जो वाकया यतीम खाने वालों ने सुनाया था, इसके बाद ये बात साबित हो चुकी थी कि हमजा वाकई शैतान है। उसने एक मासूम बच्चे को जख्मी कर डाला था और रास्ते में अली ने मुझे जो उसने वाकये की तफसील बताई थी, उनसे ये साबित होता था कि हमजा यकीनन कोई गैर मखलूकी चीज है। अली ने बताया था कि हमजा ने उसकी आंखों के सामने उठकर दूसरे बच्चे को दबोचा था और इसको झंझोर डाला था। अली ने दूसरे बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन हमजा में उस वक्त इतनी ताकत थी कि अली बच्चे से अलहदा नहीं कर सका था और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हमजा उसके पास से खुद ही हट गया था। मैंने घर में आकर हमजा को बिस्तर पर लटा दिया और इसकी तरफ गौर से देखने लगा। इसकी मासूमियत देखकर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके बारे में मुझे जितनी भी बातें मालूम हुई हैं वो सच हैं। फिर मुझे उसके दूध की फिक्र हुई। घर में कुछ नहीं था। मैं हमसायों से थोड़ा सा दूध ले आया। हमजा को चमचे से दूध पिलाते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमजा को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकता था। एक तो घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, दूसरी मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगा। दूध पिलाने के बाद मैंने हमजा को उठाया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं
इसे इसकी माँ के हवाले कर रहा हूँ। मैं घर से बाहर आ गया, फिर उस कचरा दान पर पहुंच गया जहां से मैंने हमजा को उठाया था। मैं वहां से बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। लोग वहां से गुजरते हुए अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। मैं खासी देर वहां खड़ा रहा, फिर उकताहट की वजह से एक मुनासिब जगह पर बैठ गया। खासी देर वहां बैठा रहा, लेकिन हमजा की माँ वहां नहीं आई। मैंने सोचा कि हो सकता है वो सिर्फ रात ही में वहां आती हो, इसलिए मैं रात दोबारा आने का फैसला करके उठ गया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने हमजा को बिस्तर पर लटा दिया। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने सूखी रोटियां उठाई और इन्हें पानी में भिगो दिया। कुछ देर बाद वो नरम हो गई तो मैंने इन्हें खाना शुरू कर दिया। मैं कई रोज से यही करता चला आ रहा था। रोटी खाने के बाद जिस समय कुछ तवानाई आई तो मैं हमजा के करीब बैठ गया और इस मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। रात 12 बजे तो मैं हमजा को लेकर घर से बाहर आ गया। मेरा रुख उसी कचरे दान की तरफ था जहां से मैंने हमजा को उठाया था। आज चांद आसमान पर जगमगा रहा था और हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से माहौल बेहद साफ नजर आ रहा था। मैं कचरा दान के करीब पहुंचा और मैंने जोर से हमजा की माँ को पुकारा और दरख्तों के झुंड की तरफ से उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक मैंने उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो मैंने उसे फिर पुकारा, वो नहीं आई। मैं उसे पुकारता रहा और जब उसकी तरफ से मायूस हो गया तो आस्ता आस्ता कदम उठाता दरख्तों के झुंड की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के दरमियान पहुंचने के बाद मैंने उसे फिर पुकारा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर एक झोंपड़ी के पास पहुंच गया जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर वो झोंपड़ी किसकी है, फिर ये सोचकर के किसी गरीब की होगी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी के पास पहुंचने के बाद मैंने जोर से कहा, कोई है? कुछ देर बाद झोंपड़ी का पर्दा हटा और हमजा की माँ बाहर आ गई। उसने तंजिया अंदाज में मुझसे कहा, तो आखिर तुम इसे ले ही आए? हाँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैंने आस्था आवाज में कहा, अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते तो ये दिन देखने ना पड़ते। वो बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम सच कह रही हो। मैंने इकरार किया, अब तो यकीन हो गया ना? वो तंजिया अंदाज में बोली, लेकिन अब सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तुम सच कहती हो, लो ये तुम्हारी चीज है। मैंने हमजा को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और बोली, तुम अंदर आ जाओ। अगर जानना चाहती हो कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। मैंने सोचा कि अब ये जानना या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है कि वो दोनों कौन हैं। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम कौन हो और ये कौन है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो बोली। मैं वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन फिर मुड़कर हमजा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम उसको सख्त सजा दोगी? मेरा इशारा हमजा की तरफ था। हाँ बिल्कुल, ये इसी काबिल था, लेकिन तुमने इसे पनाह दी थी। वो बोली। मुझे हमजा से अब सख्त नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उसकी माँ से कहा, क्या वो सजा मेरे सामने दे सकती है? हाँ, अगर तुम देखना चाहती हो तो आ जाओ। वो बोली और झोंपड़ी में दाखिल हो गई कि मैं भी इसके पीछे ही झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक जानब एक लालटेन जल रही थी। जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था और एक जानब कुछ बर्तन पड़े हुए थे। उसने हमजा को बिस्तर पर लटाते हुए मुझसे कहा, बैठ जाओ। मैं बिस्तर पर बैठ गया। वो बैठ गई। हमजा हमारे दरमियान में था। वो मुझसे बोली, दरअसल मैं और मेरा शौहर पुरस्रार अलूम के माहिर थे। ये हमारा शौक भी है और जरिया रोजगार भी। हमने एक ऐसा अमल किया था जिसके नतीजे में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश मेरे यहाँ होनी थी जो आम बच्चों से मुख्तलिफ होता। वो बहुत ताकतवर और ज़हीन होता और मनफी ताकतों का मालिक भी होता, लेकिन फिर हमल में कुछ गलत हो गया और ये शैतान पैदा हो गया। उसने सबसे पहले अपने बाप को मारा, लेकिन इससे पहले कि ये मुझे मारता मैंने हिफाजती इकदाम कर लिए थे। इसके बाद मैंने इसके खात्मे की खातिर इसे इस कचरे दान में डाल दिया। अगर ये वहां पड़ा रहता तो फिर खुद ब खुद खत्म हो जाता, क्योंकि बड़ा शैतान इसे अपने साथ ले जाता। दरअसल मेरी कुछ हदूदें थी जिनसे आगे अगर मैं आती तो ये मुझे मार देता। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये शैतान है, लेकिन तुम नहीं माने। दरअसल जो तबाही तुम पर आई है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों को इससे महफूज रख सकूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बीवी इस शैतान की वजह से मारी गई और इसने एक बच्चे को भी मार दिया। ये तुम्हें भी मार देता अगर मैं तुम्हारे लिए अमल ना करती।
کاش یہ مجھے بھی مار دیتا۔ میں نے مایوسی سے کہا کاش تم میری بات مان لیتے۔ وہ بولی تم اسے سزا دو، میں اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا میں اسے واقعی بہت بڑی سزا دوں گی۔ وہ بھی حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی میں اسے کچرا دان پر چھوڑ آئی تھی کہ شیطان اسے واپس لے جائے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کے صدمے سے دو چار تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے سزا دیتی اور اسے اپنے پاس بھی نہ رکھ سکتی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ میں عمل پڑھ کر اسے کچرا دان پر چھوڑ آؤں جہاں سے شیطان اسے ساتھ لے جائے گا، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت ہے، میں اپنے شوہر کے صدمے کو جھیل چکی ہوں، یہ سخت ترین سزا پائے گا۔ اس نے کہا اور کچھ پڑھنے لگی، پھر اس نے حمزہ پر پھونک ماری۔ وہ بھیانک آواز میں چیخنے لگا۔ یہ کس بچے کی آواز نہیں تھی، یہ تو کسی درندے کی چیخ سے مشابہ تھی۔ پھر اس کی ماں اس پر پڑھ کر پھونکتی رہی اور وہ چیختا رہا۔ پھر اس کی شکل بدلنے لگی، وہ بھیانک شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ ادھر پھر اس نے ایک نہایت ہی بھیانک اور مکروہ شکل اختیار کر لی۔ اس کی چیخ دل دہلا رہی تھی، پھر اس کی جسمانت بڑھنے لگی اور بالآخر اس نے دعوے کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ دعا بننے کے بعد جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں دعا دیکھ کر بولی میں نے جو عمل اس پر پڑھ دیا ہے یہ صدیوں اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ میں نے اس طرف دیکھا اور بولا تمہاری مہربانی کہ تم نے میری خواہش پر میرے سامنے اسے سزا دی۔ یہ بات میرے لیے سکون کا باعث ہے کہ وہ صدیوں تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اپنی بات کہنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور جھونپڑی سے باہر آنے کے بعد میں آہستہ قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ فرینڈز، انسان سوچتا اور کرتا تو اچھی قیمت سے ہی ہے، پر غیب کا علم رکھنے والی صرف اوپر والی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔